جی اسم کے چار پہلو پہ بات ہو رہی تھی. پہلی چیز جینڈر یعنی کہ مذکر یا مؤنث ہونا. دوسری چیز عدد نمبر یعنی کہ واحد مثنیٰ جمع جو انشاءاللہ آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے. اس کے ساتھ ایک تیسری چیز ہوتی ہے وسعت کیپیسٹی یعنی کہ کسی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا. معرفہ نکرہ یعنی کہ اسم خاص ہے یا عام ہے. عام شخص عام چیز عام جگہ, خاص شخص خاص چیز خاص جگہ. اور چوتھی چیز ہوتی ہے کیس اعراب رفع نصب جر. یہ ہم نے پہلے دن پڑھ لیا تھا. سیکنڈ ڈے ہم نے مذکر مؤنث پڑھا تھا. آج انشاءاللہ ہم واحد مثنیٰ جمع عدد کا مطالعہ کریں گے. تو چلتے ہیں عدد کی طرف. تو عدد کی فردر اقسام ہوتی ہیں جو کہ واحد ہے سنگولر, مثنیٰ یعنی کہ ڈوئل دو کے لیے, اور پلورل یعنی کہ جمع دو سے زیادہ کے لیے. اردو اور انگلش میں سیم ہوتا ہے یعنی کہ ایک کے لیے واحد اور دو سے جمع سٹارٹ ہو جاتی ہے, دو کے لیے جمع ہوتا ہے انگلش میں بھی اردو میں بھی. لیکن عربی میں دو کے لیے مثنیٰ کا استعمال کیا جاتا ہے, الگ سے لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اور عربی کی جمع تین سے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آگے چلتے ہیں ہم اس پہ عدد کی طرف. عدد یا تو واحد ہوتا ہے یا مثنیٰ ہوتا ہے یا پھر جمع ہوتا ہے. تو آج ہم سب سے پہلے پڑھیں گے مثنیٰ یعنی کہ واحد سے مثنیٰ کیسے بناتے ہیں. واحد سے مثنیٰ ایک سے دو کیسے بنتا ہے, اس کا طریقہ کیا اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو یہاں سے دیکھیں واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ. واحد اسم کے آخر پر زبر دیں گے, واحد اسم کے آخر پر زبر دیں گے اور آخر میں الف اور نون زیر نی کا اضافہ کریں گے. ابھی ہم مذکر کو بنا رہے ہیں, پھر ہم مؤنث کو بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو واحد مثنیٰ, ابھی ہم صرف واحد سے مثنیٰ دو بنا رہے ہیں. تو مسلمن ہے واحد اسم ایک مسلمان. اب اوپر کا اس کے اوپر جو ہے نا رول اپلائی کرنا ہے. رول میں پہلا قاعدہ کیا ہے کہ آخری حرف پر زبر دیں گے. آخری حرف اس کا کیا ہے, میم ہے. تو میم پہ تنوین ہٹا کے ہم کیا کر دیں گے, زبر دیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کریں گے, آخر میں الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا, مسلمانی. مسلمن ایک مسلمان, مسلمانی دو مسلمان. اگلے لفظ پہ آتے ہیں کتابن. کتابن اس کا آخری حرف کون سا ہے, با. با پہ کیا ہے, تنوین ہے. تنوین کو ہٹائیں گے اور اس پہ زبر دیں گے تو کتابہ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ پھر ہم الف اور نون سے نی کا اضافہ کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا, کتابانی. کتابانی. ٹھیک ہے جی. چلیے آگے چلتے ہیں. صادقن. صادقن کا آخری حرف کاف. کاف پر کیا کریں گے, تنوین ہٹا کے زبر دیں گے تو صادقہ ہو جائے گا. اور پھر دوسرے کیا کریں گے, الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا, صادقانی دو سچے. مسلمتن یہ اب مؤنث آ گیا ہے, مسلمتن مؤنث آ گیا. تو مؤنث میں ہم نے کیا کرنا تھا, اس میں بھی آخری حرف کیا ہے, گولتا ہے. تا کے اوپر کیا دیں گے, ہم زبر دیں گے. زبر دے کے الف اور نون زیر نی کا اضافہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا مسلمتان. مسلمتن ایک مسلمان مؤنث, مسلمتانی دو مسلمان عورتیں. ٹھیک ہے جی, یا مؤنث یا عورتیں. ٹھیک ہے جی. صادقتن. صادقن سے صادقتن مثنیٰ ہو گیا. اب مثنیٰ کا مؤنث ہو گیا. اب مؤنث سے بنائیں گے ہم اس میں مثنیٰ پہ. تو آخری حرف گولتا, گولتا پہ دیں گے زبر, صادقہ تا ہو جائے گا. اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا, صادقتانی. صادقہ تانی دو سچی مؤنث یا عورتیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ. اب یہاں تو یہ کہے گا کہ یہ کون سی, یہ جو واحد اسم آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اس کی اعرابی حالت کون سی ہے, مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے. مرفوع حالت میں ہے. ٹھیک ہے. مرفوع حالت میں ہے تو اس کا مثنیٰ بھی مرفوع حالت میں یہ شکل ہوگی اس کی. مرفوع حالت میں واحد کی یہ شکل ہے, مرفوع حالت میں مثنیٰ کی یہ شکل ہے. آنی ساؤنڈ آپ یاد رکھیں گے, آنی. تو آنی سے آپ جو ہے پہچان جائیں گے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے, دو کی بات ہو رہی ہے. جس چیز کی بھی بات ہو رہی ہے, جس شخص کی بھی بات ہو رہی ہے, یہ دو شخص کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں اس کے اعراب کی طرف, مثنیٰ کے اعراب کی طرف.
मुसन्ना का एराब क्या है। तो मरफू मंसूब मजरूर, आनी मरफू हालत में क्या होगा, आनी, और मंसूब हालत में क्या होगा, अलिफ या साकिन हो जाएगा, अलिफ क्या हो जाएगा, या साकिन हो जाएगा, और इसकी मजरूर हालत भी यही होगी, अलिफ क्या हो जाएगा, या साकिन हो जाएगा। ठीक है जी, मरफू में आनी अलिफ, मंसूब और मजरूर में अलिफ की जगह सिर्फ या साकिन आ जाएगा, तो ये नसब और जर हालत हो जाएगी इसकी। यहाँ पे देख लेते हैं, जिस तरह मुस्लिमानी, ठीक है जी, और देखें मुस्लिमा जो ब्लैक उसमें लिखा हुआ है, तो इसमें देखें कि मुस्लिमा मुस्लिमा मुस्लिमा, तो जो मरफू हालत है उसमें सिर्फ अलिफ है, और मंसूब और मजरूर में अलिफ की जगह या साकिन है, तो ये उसकी नसब और जर हालत हो जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर, जो आपको 100% सही समझ में आएगा वो तो जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त आपको समझ आएगा। अभी तो क्योंकि बुनियादी चीजें जब तक ये 4 चीजें पढ़ न लें, तब तक अगर हम इस्तेमाल करने जाएंगे तो फिर हम बार बार, जी जी, मंसूब और मजरूर है, क्योंकि मुस्लिमानी है ना, अगर ये तनवीन वाला होता तो 3 शक्लें होती, मुस्लिमानी तनवीन वाला नहीं है, तो इसकी वजह से उसकी 2 शक्लें होंगी, आनी आईनी, गैर मुनसरिफ हो जाता है। ठीक है जी, क्योंकि एराब 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हरकत वाले और एक होते हैं हुरूफ। एराब होते हैं, एराब बिल हरकत, हरकत से पहचाना जाता है, और दूसरे होते हैं एराब बिल हुरूफ, हुरूफ से पहचाने जाते हैं। तो ये एराब जो है ये हुरूफ से पहचाने जाते हैं, इसके ऊपर वो नहीं है 2 पेश या 1 ज़बर, वो नहीं है, यहाँ पे क्या है, अलिफ और नून, तो ये हुरूफ हैं, तो ये हुरूफ से पहचान जाते हैं। एराब 2 तरह के होते हैं, एक एराब बिल हरकत, हरकत वाले यानी कि 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर, या 1 पेश 1 ज़बर, उस वाले होते हैं, या फिर क्या होते हैं, हुरूफ वाले होते हैं, जिस तरह यहाँ पे नजर आ रहे हैं, अलिफ और नून और फिर या और नून। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वाहिद, वाहिद इस्म, इसकी पहचान अलिफ और नून ज़ेरी, मंसूब इसकी पहचान या और नून, और मजरूर में या और नून सेम हो रहेगी। अब यहाँ पे देखते हैं किताबुन, अब आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है ताकि जो है ये अच्छे से समझ में आ जाए हमें। जी, यहाँ पे क्या है, किताबुन, तो सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं यहाँ से ताकि सबकी पार्टिसिपेशन हो जाए, तो ऑनलाइन वाले जो हैं वो खुद से ही इसकी कोशिश करते रहें। जी, तो आप बताइए, किताबुन से किताबानी, किताबैनी, किताबैनी, ठीक है जी, किताबुन, किताबानी, किताबैनी, किताबैनी, माशाल्लाह। आगे आप बेटा बताइए, सादिक, स्वादिकुन, स्वादिकानी, स्वादिकैनी, स्वादिकैनी, माशाल्लाह। ठीक है जी, आलिमुन, जिशान भाई, आलिमानी, आलिमैनी, आलिमैनी, ठीक है जी। आलिम और आलम, एक होता है आलिम, एक होता है आलम। लाम पे जो जेर होती है तो वो आलिम यानी कि इल्म वाला, और आलम यानी कि जहान। तो देखें जेर जबर से तर्जमे में कितना फर्क आ जाता है, तो इसलिए जेर जबर में अरबी में खास तौर पर तर्जमे पे ध्यान देना इंतहाई जरूरी है। आलिम आलम बहुत फर्क है, हालांकि ये अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी जो है ना वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। मोमिनुन से, जी रेहान भाई, मोमिनानी, मोमिनैनी, मोमिनैनी, माशाल्लाह जी। मुदर्रिसुन, मुदर्रिसानी, मुदर्रिसैनी, मुदर्रिसैनी, माशाल्लाह जी बेटा। काफिरुन, काफिरानी, काफिरैनी, काफिरैनी, माशाल्लाह। अब ये जो अल्फाज हैं ये सब के तर्जुमा आपको आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं ना, तो ये अरबी के ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो 70% हमने अरबी से अल्फाज लिए हैं उसका हमें ये बेनिफिट है उर्दू वालों के लिए। तो ये उर्दू वालों के लिए तो कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए कि भाई ये हमें तो समझ में नहीं आती, ये तो अरबी है, बड़ी मुश्किल काम है। तो जिसके 70% जिसकी जुबान के अल्फाज ही अरबी से आए हों उसके पास तो कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए।
वो कहें तो जैपनीज चाइनीज कहें तो समझ में आता है ना, मुसलमान का है, उर्दू वाला का है तो समझ में नहीं आता। बहरहाल आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा पुख्ता हो जाए। बाकी आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह मजीद बेहतर हो जाएगा। जी कादिबुन, कादिबानी, कादिबैनी, कादिबैनी, माशाल्लाह। जी मुशरिकुन, मुशरिकानी, मुशरिकैनी, मुशरिकैनी, माशाल्लाह। तालिबुन, तालिबानी, तालिबैनी, तालिबैनी, माशाल्लाह। तालिब से तालिबान, माशाल्लाह। ठीक है जी, ये तालिब इल्म हासिल करने वाला है, ये अफगानी तालिबान नहीं है, ठीक है भाई। हाँ, ये तालिबान दो इल्म हासिल करने वाले, ये अफगानिस्तान के तालिबान नहीं है। चलें जी आगे चलते हैं। तबीबुन, इसके बाद जी इस पे देखिए बेटा, तबीबुन, तबीबानी, तबीबैनी, तबीबैनी, माशाल्लाह। ये हम इस तरह से इंटरेक्टिव रखेंगे ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस यहाँ पे होती जाए। एक बार भी घर पे जाके पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। जी मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, माशाल्लाह। जी आबिदुन, आबिदानी, आबिदैनी, आबिदैनी। ठीक है, तो इस साउंड से आप पहचान जाएंगे कि ये दो की बात हो रही है। आबिद, आबिदानी, दो आबिद, दो इबादत गुजार की बात हो रही है, दो इबादत करने वालों की बात हो रही है। माशाल्लाह आगे चलते हैं जी। जन्नतुन, जन्नतुन, जी जन्नतानी, जन्नतैनी, जन्नतैनी, जन्नतान। मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा उसके लिए दो बाब हैं, दो जन्नतें हैं। ठीक है जी। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, माशाल्लाह। ठीक है जी। आबिदतुन, आबिदतानी, आबिदतैनी, आबिदतैनी, माशाल्लाह। ठीक है जी। तो हमने ज्यादातर इसमें प्रैक्टिस ही रखी है ताकि अभी बहुत ज्यादा डिटेल में मीनिंग और डेफिनेशन और उसमें जाएंगे तो फिर बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो क्योंकि हमारी क्लास जो है कॉन्सेप्चुअल है तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। बाकी बुक्स में लिखा हुआ है, इंशाल्लाह वो एक दो बार पढ़ेंगे तो आपके मजीद बेहतर हो जाएगा। काफिरतुन, काफिरतानी, काफिरतैनी, काफिरतैनी। अच्छा जी, तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि काफिरतुन जो है ये मुज़क्कर है या मुन्नस है? मुन्नस है। अगर मैं पूछूं कि इसका एराब क्या है काफिरतुन का, यानी कि मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? मरफू है। अब मैं पूछूं अगर आपको काफिरतानी के एराब क्या है? काफिरतानी का भी मरफू है, माशाल्लाह। काफिरतानी का मरफू, और इसमें फर्क क्यों है काफिरतुन? अब हाँ, ये वाहिद है और ये मुसन्ना है, इस वजह से मरफू हालत में फर्क है, माशाल्लाह बेहतरीन। जी मुशरिकतुन, मुशरिकतानी, मुशरिकतैनी, मुशरिकतैनी, माशाल्लाह जी। ठीक है जी। साजिदतुन, साजिदा तानी, साजिदतैनी, साजिदतैनी, माशाल्लाह। ठीक है जी, माशाल्लाह। ठीक है जी। सादिका तुन ये हो गया हमारा। ठीक है जी, सादिका तुन हो गया। आलिमतुन, आलिमतानी, आलिमतैनी, आलिमतैनी, माशाल्लाह जी। मुदर्रिसतुन, ये मदरसा नहीं है, मुदर्रिसा है, पढ़ाने वाली। मुदर्रिस दर्स देने वाला, मुदर्रिसा दर्स देने वाली, मुन्नस। ठीक है जी। जी बताइए। मुदर्रिसतानी, मुदर्रिसतैनी, मुदर्रिसतैनी, माशाल्लाह जी। ठीक है जी। तो अब वाहिद से मुसन्ना हमने बना लिया, अब हम वाहिद से जमा बनाने का तरीका सीखते हैं।
ठीक है जी, वाहिद से जमा, मुसन्ना भी बनेगी तो वाहिद से, जमा भी बनेगी तो वाहिद से। ठीक है, ये नहीं कि मुसन्ना से जमा बनाने की कोशिश करेंगे तो बन तो लेगी, जब सीख जाएंगे तो उससे भी बना लेंगे आप, लेकिन जो रूल है वो क्या है, वाहिद से बनेगी। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। तो वाहिद से जमा बनाने का, मुसन्ना का सीख लिया हमने, दो बनाने का। अब हम क्या कर रहे हैं, जमा, यानी कि तीन या तीन से ज्यादा के लिए फिर वो जमा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं। तो अदद या तो वाहिद होता है, या मुसन्ना होता है, या फिर जमा होता है। फिर क्या होता है कि जमा जो है वो फर्दर उसके अंदर किस्में होती हैं, या तो जमा सालिम होती है या फिर जमा मुकस्सर होती है। जमा सालिम, सालिम से जिस तरह से लफ्ज से ही जाहिर है, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। सालिम का लफ्ज क्या होता है, कंप्लीट, मुकम्मल, साबुत, टूटी हुई नहीं है, बिल्कुल एकदम अपनी सही कंडीशन में है। और जमा मुकस्सर, मुकस्सर कहते हैं टूटी हुई, बिखरी हुई। ठीक है, यानी कि बस वो आगे पीछे और कुछ भी हुई हुई है, टूटी फूटी है। टूट फूट के चीजें कहाँ पड़ी होती हैं, ठीक है ना, कोई चीज किधर पड़ी हुई है, कोई चीज आगे आ गई, कोई पीछे चली गई, कोई कहाँ चली गई। तो जिस तरीके से कबाड़ में पड़ी होती है ना टूटी हुई साइकिल, मुंतशिर होके, तो वो है तो साइकिल ही, लेकिन ये है कि वो अब टूटी हुई साइकिल है, तो उसका पहिया आगे गया हुआ होगा, हैंडल पीछे गया हुआ होगा। ठीक है, पेडल कहाँ पे होंगे, तो मुकम्मल और नामुकम्मल, आसान अल्फाज, माशाल्लाह। तो आगे चलते हैं। उर्दू, सबसे पहले हम आपको उर्दू में, ये चीज उर्दू में भी है, ऐसा नहीं है कि ये अरबी के अंदर है और हमें कुछ समझने में मसला हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज उर्दू में भी है, बिल्कुल एज इट इज हम लोग आती है, हम इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये पहले हम उर्दू में समझ जाते हैं कि उर्दू में कैसी होती है। तो उर्दू में आपको आती है, सिर्फ मैंने आपको क्लियर करना है, ताकि जब आप उस पे जाएंगे तो आपको अरबी में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे मैं एक लफ्ज लिखता हूँ, जिस तरह से मरफू का साउंड आपने ऊना, और मंसूब का साउंड क्या है इसमें, ईना। तो यहाँ पे एक उर्दू का लफ्ज है किताब। अब ये कौन सा उर्दू का लफ्ज है, ये अरबी का नहीं है, किताब। ठीक है, तो किताब की जमा हम क्या इस्तेमाल करते हैं, किताबों। तो यहाँ पे देखें क्या हो गया, किताबों, जमा इस्तेमाल करते हैं, किताब की जमा किताबों। एक और जमा भी है किताब की जो हम इस्तेमाल करते हैं, किताबें, किताबों, किताबें, ये दोनों जमा हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। फिर एक और जमा भी होती है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, कुतुब, इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, कुतुब खाना, तो ये इस्तेमाल करते हैं हम। तो ये जो किताबों है, ये असल में मरफू हालत है। जमा बनाने की जो बेसिक किस्म की से जमा बनाई जाती है, ये असल में यही वाली जमा है, किताबों। ऊना, वाव साकिन और नून का इजाफा कर देते हैं, और उससे पहले जो हर्फ होता है इसम का आखिरी हर्फ, उसके ऊपर क्या करते हैं, पेश देते हैं। तो किताबों, किताबें, कुतुब। तो ये जो दो हैं, किताबों और किताबें, ये हैं जमा सालिम। क्या है, इसमें काफ ता अलिफ बा। आप देखें इन दोनों में, किताबों में भी काफ ता अलिफ बा, और मंसूब हालत में भी काफ ता अलिफ बा। ये किताब पूरे का पूरा कंप्लीट मौजूद है इसके अंदर, ऐसे ही है। जबकि कुतुब के अंदर क्या है कि काफ ता अलिफ जो है वो गायब हो गया। तो यानी कि जब भी वो अपने काफ ता अलिफ बा, ये पूरे का पूरा एज इट इज नहीं आ रहा, या तो कोई हर्फ का कम हो गया या किसी हर्फ का इजाफा हो गया, तो हम कहेंगे कि ये जमा मुकस्सर है, चाहे वो पूरे के पूरे अल्फाज पीछे मौजूद हैं, हर हुरूफ जो हैं वो पूरे के पूरे मौजूद हैं, उसके बावजूद हम क्या कहेंगे कि ये टूटी हुई है, क्योंकि कोई एक हर्फ कम हो गया या कुछ ज्यादा हो गया तो हमारे लिए वो टूटी हुई है। ठीक है जी, माशाल्लाह। अब एक और लफ्ज है कलम। कलम की जमा हम उर्दू में क्या इस्तेमाल करते हैं, कलमू। क्या इस्तेमाल करते हैं, कलमू। ठीक है जी, और एक और कलमे, कलमू, कलमे। तो ये कलमों क्या है, मरफू हालत है, और ये कलमे क्या है, मंसूब हालत है इसकी। ठीक है जी, और फिर इसकी मुकस्सर भी हम इस्तेमाल करते हैं, अकलाम, अकलाम। तो अब ये देखें ये हम मुकस्सर इस्तेमाल करते हैं। तो यही चीज अरबी के अंदर है।
यही चीज अरबी के अंदर है। किसी की जमा मुकस्सर हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती। किसी की सिर्फ जमा मुकस्सर होगी, किसी की सिर्फ जमा सालिम होगी, ठीक है, किसी की दोनों हो सकती हैं, ठीक है। तो क्योंकि अल्फाज ऑलरेडी हमारे लैंग्वेज वाले हैं तो इसलिए उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आगे समझ में क्लियर है आपको? माशाल्लाह। आगे चलते हैं। मुस्लिमुन, तो अब ये अरबी का लफ्ज आ गया मुस्लिमुन। तो ऊपर वाले पैटर्न के हिसाब से मुस्लिमुन क्या हो जाएगा? मुस्लिमूना, कल मुंह, मीम के ऊपर क्या कर दी हमने? पेश दे दी और वाव और नून का इजाफा कर दिया, कल मुंह। लेकिन अरबी के अंदर क्या है? मुस्लिमूना। उसमें नून जो है वो गुन्ना वाला हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में गुन्ना नहीं होता, ठीक है जी। तो मुस्लिमूना। और इसी तरीके से मंसूब हालत उसकी जो कलमे करते हैं हम लोग, वो क्या हो जाएगी? मुस्लिमीना, ठीक है जी, मुस्लिमीना। अब इसकी जो है वो जमा मुकस्सर नहीं होती, ठीक है ना। ये अरबी का है, इसमें इस इसम की जमा मुकस्सर नहीं होती। एक और इसम देखते हैं, काफिरुन। काफिरुन, काफिरुन से जमा क्या हालत बन जाएगी इसी पैटर्न पे? काफिरूना। काफिरू उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं और अरबी में काफिरूना। बस सिर्फ जेर जबर पेश लगा देंगे और नून यहाँ पे हम काफिरू में नून जो है ना वो बगैर नुक्ते वाला इस्तेमाल करते हैं, अरबी में नुक्ते वाला इस्तेमाल होता है। तो काफिरूना। और फिर ये मंसूब हालत क्या हो जाएगी? काफिरीना। काफिरूना, काफिरीना। अच्छा, काफिर की जमा जो है वो एक मुकस्सर भी इस्तेमाल होती है, किसी को याद है तो बता दें? कुफार। कुफार, कुफार, कुफार। तो ये जमा मुकस्सर भी इस्तेमाल होती है। तो ये यही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने अरबी में समझना है, जो कि उर्दू में ऑलरेडी हम जानते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि हमें उसका सही से पता नहीं है कि भाई ये ऐसा है या ऐसा नहीं है। लाशौरी सतह पे पड़ा हुआ है, इल्मी सतह पे, शौरी सतह पे नहीं आया, तो वो अब इंशाल्लाह जो है वो शौरी सतह पे आ जाएगा, इल्मी सतह पे आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी हम लोग अच्छे से जानते हैं, क्लियर है, वाज़ेह है, ठीक है जी। जी 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 बोले। कौन सी वाली हालत? मुकस्सर, ये मरफू है ना, मरफू हालत है, मरफू हालत। हाँ, मुकस्सर है, मुकस्सर है तो जमा है, जमा जमा। अभी हम जमा पढ़ रहे हैं ना, जमा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मुस्लिमूना इसकी मरफू हालत है, ये इसकी मंसूब हालत है, और ये मुकस्सर की जो है ना वो मरफू हालत है। किसकी? आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आराम आराम से चलें ताकि आप मंजिल पे पहुंच सकें। ओवर स्पीडिंग जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, ठीक है जी। तो आगे चलें इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे ख्याल में हम ऐसा करते हैं कि लिंक जो है वो 40 मिनट्स हो चुके हैं, तो लिंक दोबारा शेयर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ